Now we will see Yeah. how to implement stack queues and evaluation of expression like conversion of infix to postfix in this lecture. Okay. Okay. So can you tell me how stack look like? Stack is actually FIFO structure, first in, first out structure. We Yes. can put the stacks into and one by one, and we can push it from top of stack. Yes. Stack is first in, first out, right? First in, first out. Hmm. Just a minute. I have to check how to keep a pad. Okay. Stack is a first in, first out manner. Okay. This. F1, F4. So whenever new element we put it into stack, okay, how, means whatever the we are saying inserting, okay. What is meant by inserting in case of programming? It is a push, right? Yes, push. Okay. And whenever Push we are and pop. removing, it means pop. Pop. So we'll do this operation. Either we will push the elements into stack or we will pop the element from the stack, and any other operation display elements of stack. Okay. Yeah. So now tell me, I am going to creating a stack by using array. This is my array. Okay. Array of size what? 5. Size कितने हैं यहाँ पे? 5. Five. Getting it? So Yeah. initially, if there is a no element in stack, it means there is a no element in my array, right? Yes. Yes. No element. Okay. And as we know, all the array elements having their indexing. Yes. So first element have index number 0, second element index number 1, third element index number 2, likewise. Okay, and last element is n minus 1. Why n minus 1? Size minus 1. Suppose size is 5, then last element is of index 4. Getting it? Yes. So tell me the condition when your stack is empty. Stack empty कब होता है? फिर in that case, if there is a no element, right? Yes. And in stack, all the current position is shown by using top. Okay, there is one operator or concept in that we can see what is my top element. So when top is equal to 1, when top is equal to 1, it means there are two elements, right? That equal to 1 means that is index number. Means if top is equal to 1, it means there are two elements because this one and this one, right? Yes. Okay. Yes. When stack is empty,
इन दैट केस टॉप का वैल्यू क्या होना चाहिए? यस, टॉप का वैल्यू 0. suppose if top is equal to 0, it means top is allocated to which position? This position, Yeah. right? तो अगर यहाँ पे रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे वन एलिमेंट है, that is x, y, whatever. If top is equal to 0, it means there is a one element. Yeah. जीरो पे कब इंडेक्स जीरो कब होता है? फर्स्ट एलिमेंट आने के बाद, राइट? Okay. इंडेक्स टू कब होगा? इंडेक्स वन कब होगा? सेकेंड एलिमेंट आने के बाद. Yes. थ्री कब होगा? सॉरी, टू कब होगा? थर्ड नंबर आने के बाद, राइट? सो इन दैट केस इफ टॉप इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? वहां पे वन एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट? Yes. Yes. Getting it? Yes. So whenever we are going to implement stack by using array, initially we need to mention top is equal to what? -1. Yes. Yes. Okay. Means first we need to create one array. सो कंडीशन क्या 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 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? फर्स्ट create array of size n. Okay, second Yes. initialize top is equal to Minus -1. It means empty stack, no element is present. Next we need to ask users about their condition, means their operations. कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे हम? वन इज push, second one pop, third one display stack, means display all the elements of stack. Okay, Yeah. getting it? Yes. Yes. Okay, so we will see how to implement stack in array by using array. Okay, Yeah. so hope you guys have little bit knowledge about the C programming. Why we add the header files? क्या क्या होता है यहाँ पे? Yes. TDI image. हेडर फाइल लगते हैं हमें, राइट? Yeah. Okay, I am writing the program for just a minute. ओके, सो इनिशियली हमें क्या क्या करना पड़ चाहिए? int size. Suppose size, Right. if you want to give the size anywhere else,
you can use this. Okay, suppose I am giving the has defined size here, or just a minute, I'm putting the size here. Int size is equal to 10. What it means? I can put only 10 elements here, right? Yes or no? Either you Yes, can yes. mention size here, no problem, or if you want to include size in anywhere else, means that is suppose has defined size. What it means? Size equal to 10. Okay, or size is equal to 10. Both are okay. Only difference is that if you mention size here, okay, मैंने कहाँ पे किया, यहाँ पे साइज मेंशन किया, ठीक है, कितना है 10 है. So this is nothing but the macros. ओके, तो कैसे होता है देखो, आप अगर आपका प्रोग्राम जब भी आप कंपाइल करते हो इन दैट केस, तो कंपाइल कैसे होता है? द कोड यू आर रिटन हियर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस इज नॉट अ प्योरली हायर लेवल लैंग्वेज, राइट? यस और नो? Yes, yes, yes. Because we know the hardware only knows the zeros and ones, that is binary language. Okay, and as a human being we don't know how to write a program in binaries. Okay, this is too much complicated. Okay, so better way we can write a program in high level language, that is C, C++, Java, or anywhere else. Yes or no? And to convert this program, means high level language, into binary, that is to into code that is understandable by machines. Okay, in that case we need one compiler, right? Yes. अगर हम C में प्रोग्राम कर रहे हैं तो we need the compiler for C programming. अगर हम Java में कर रहे हैं then we need the compiler for Java coding. Okay, that converts your high level language into low level languages. Getting it? Yes, yes. Now here in this video I am using the Dev CC, Dev C++. Okay, this is one emulator in which already inbuilt compiler is there, and whenever I write the program after compiling, you can see there are lot of options are given here. If you are aware about the any hardware, means any emulator or any सॉफ्टवेयर दैट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल इक्लिप्स है, ठीक है, तो कौन से भी कंपाइलर पे आप कर सकते हैं. नॉर्मली इससे पहले आपने जो भी किया होगा देव सी प्लस प्लस, देव सी प्लस प्लस नहीं रहेगा, टर्बो सी रहेगा, राइट? ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द साइज, देन int main. इन मेन क्या क्या चाहिए देखो हमें अभी. इज दिस विजिबल टू यू? Yes, yes, visible, sir. ओके, जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं, राइट, int वैल्यू कॉमा, हमें अगर देखा जाए तो यूजर को हम क्या करते हैं, ऑपरेशन के लिए पूछते हैं, राइट? इन दैट केस पुश है, पॉप है, डिस्प्ले है, तो हम चॉइस भी पूछेंगे, ठीक है, यहाँ पे. गेटिंग इट? Yes, sir. जब तक यूजर वैल्यू ऐड करना चाहेगा तो ऐड होना चाहिए, जब मतलब रिमूव करना चाहेगा फ्रॉम स्टैक, दैट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक. ओके, मींस व्हाइल यूज करते हैं हम, एनी आइडिया? जब तक यूजर एग्जिट नहीं बोलता, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर until user put exit choice, we need to ask choice to them, yes or no? Until and unless user exit नहीं बोलता है तब तक हमें चॉइस पूछना चाहिए. कौन कौन से चॉइस होने चाहिए हमें? पुश, पॉप, डिस्प्ले, तीन. जब तक यूजर एग्जिट नहीं बोलता है तब तक हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू आस्क दिस चॉइस, यस और नो? Yes, yes, sir. ओके,
Means again one more choice we need to add, that is exit. exit भी एक choice है ना यहाँ पे. Yes, yes. इसके लिए हमें क्या कोड क्या करना चाहिए हमें? यस, जब तक यूजर एग्जिट नहीं बोलता है तब तक. तो इनिशियली मेरे यहाँ पे चॉइस क्या रहेगी? एनीवन. सो आई कैन राइट द प्रिंट अप हियर. जस्ट मिनट. printf is a function to add anything on your console, right? What is menu driven program? No problem. देखो मैं क्या कर रहा हूँ. menu driven program. Insert new element. बराबर है. That is mean by push. Yes or no? Yes, sir. चॉइस क्या क्या रहेगा देखो. चॉइस क्या रहेगी पूछने जो हम पूछने वाले हैं? डिलीट एलिमेंट. दैट इज नथिंग बट पॉप. थर्ड चॉइस क्या रहेगी? C, display. डिस्प्ले स्टैक. और फोर्थ Exit. okay, let's see. Insert. okay, एक्सटेंशन क्यों यूज करते हैं हम? कैनेडा New line. every time for new line. okay, see how our program looks like. okay, so whenever user insert one, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? ask user to enter any one values. okay, so हम तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन लिखना चाहिए, राइट? Yes. मीन्स क्या होना चाहिए अभी हमारा यहाँ पे? वन मोर लाइन यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैं. insert your choice. so whatever the user putting the choice, that is how we will get an into computer by using scanf function. yes, right? %d. Yes. that is my choice. yes or no? Yes, sir. okay, so now I am writing the code for, means I am using the switch case. choice कौन सा वैल्यू रहेगा? इंटीजर वैल्यू, राइट? Yes. case 1, case 2, case 3. Case is a keyword, right? Yes, It's yes, sir. showing here bold.
तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, पुश का कोड आना चाहिए, Yes, sir. पॉप का, डिस्प्ले का, और यहाँ पे सीधा उसको क्या बोलना है, एग्जिट फ्रॉम माई दिस कोड. Getting it? Simple. Yes, yes. Now your choice is either you can write the push code here, okay, or you can create a separate function for this. क्योंकि push हमें कितनी बार भी चाहिए होता है. Why we are using the functions in programming? To That to repeat it. right? Yes. No problem. You can write the code here or separately. What you want here itself, or new function is for pushing, popping, on displaying. Yes, it depends on you. यहाँ पे करें हम कोड लिखे या इसके लिए पुश के लिए, पॉप के लिए और डिस्प्ले के लिए अलग फंक्शन लिख के यहाँ पे कॉल करें. फंक्शन लिख के कॉल करना चाहिए. ओके, सो फंक्शन लिखना है, राइट. सो यहाँ पे यू कैन डू वन थिंग for function. You need to declare it first, then define it, and you need to call it whenever you need, right? So for declaration, you can declare outside of main. कौन सा है? void push. I'm declaring functions, okay? Void pop, void display. Suppose these are my three functions. Okay. Yes or no? Yes, sir. Okay. So यहाँ पे whenever you call the function push, it means we need to add new element into my stack. अभी जो न्यू एलिमेंट है कौन देगा, यूजर देगा या आप देगा, मतलब whenever I call the push function I need to enter one values, right? Yes, yes. So for that push function I need to pass one value. Yes. अगर हम यहाँ पे वैल्यू सारे इंटीजर ले रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू पास होना चाहिए यहाँ पे फंक्शन कॉल करते समय. पॉप के लिए वैल्यू पास करते हैं क्या, व्हाट इट मींस, whatever means whichever the element which is at top of the stack that will be removed from that stack, right? Yes, yes. Okay. डिस्प्ले में क्या होता है, simply it started from index number 0 to top. Yes. Okay. So I am writing the code for push. Okay. तो अगर यहाँ पे केस 1 में पुश हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यूजर को एक वैल्यू पूछना है ना. Yes, sir. Every time add the backslash n. जो भी यूजर वैल्यू देगा दैट इज माय %d, एम्परसेंड क्या होगा, वैल्यू. यस. Yes, sir. And then we can call that push function passing this value simply, Yes. and every case should be break. तो क्या होगा अगर आपने ब्रेक नहीं दिया, it means after continuing this after continuing this case your next case will be automatic call.
ओके हमें क्या करना है, पुश मतलब पुश ही करना है, पॉप पे जाना है क्या यहाँ पे, नहीं, राइट. So after completing Yes. push, it should break from that switch case and again asking for new choices. तो यहाँ पे एवरी केस का एंड पे क्या करना है आपको, और तेरे यहाँ से आ रहा है क्या? I'm writing the break to everywhere. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. जब हम ओके डिस्प्ले में हमें क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है सीधे. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया देखो, ऊपर फंक्शन क्या किया है, Declare. we declare the function. Yes, what it means, It needs to be defined. ये define भी करना पड़ेगा. function called. Yes. बट यहाँ पे हमने कहीं पे डिफाइन किया है कि पुश फंक्शन कैसे वर्क नहीं. करते हैं. नहीं. Okay, so we need to write the push, how our push function will work. So you can write here code for push, void push, yes, one int value पास होती है, right? Yes or no? Hello, hello, yes, am I audible? Hello, Yes sir. Hello. I am audible, na? Yes. You are audible. So next is, now we are implementing stack. Okay, so in that case I written the size of my stack is now 10, but here anywhere I mention the top value, no, I need to mention top, and whenever at initial means at starting level, top is always should be at, or -1. top always should be assigned as -1, that is empty stack. Yes, now अभी देखो, if you are adding new element into stack, yes, anywhere anytime, now this is my stack, yes or no? When I call push, is this visible, Satash? Hello, hello, Sartaj? Hello. हाँ सरताज, आवाज आ रही है ना? Yes. I could. If sound breaks, please let me know. Okay. Yeah. So here I already mentioned the size,
and initially we mention the top or an initialized top is equal to -1. But can we means here programmer should know how many times push function called. Initially we don't know na how many times previously push function is called. Yes, yes, yes. So everywhere whenever we pushing or whenever we inserting new element into stack, we need to check whether my stack is full or not, Yeah, yeah. right? Yes, yes. And second thing, when we call my stack is full, stack full कब होता है? Top is equal to maximum size of If array. top is equal to size minus n, sorry Yes, size yes. minus 1. Yes. यहाँ पे साइज अगर मैंने 10 दी है तो when top is equal to 9 होता है, so in that case all 10 elements are present in my stack. Yes, Yes or yes, no? yes. Yes. Right. So यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? We need to mention the conditions. Means whether we are adding new element into stack, we need to check whether my stack is full or not. So for that, how we check the condition? Yes. While loop, can we use while loop or if? If top is equal to क्या होना रहता है अगर if top is equal to Minus, sorry, size of size minus 1. size -1. Yes. Yes. Then in that case हम यूजर को क्या बोल सकते हैं? Stack is full. Sorry, stack is already full. Yes. Yeah. अगर top का size top is not equal to size minus 1, then it means we can put the new element into stack. Yes. Yes or no? Yes, yes. So in that case, I'm writing else statements. तो जो भी एलिमेंट रहेगा, अभी हमने यहाँ पे कई एरे मेंशन किया है क्या? नहीं. यस. स्टैक मेंशन किया है क्या यहाँ पे मेन में? नहीं. ओके. हम एरे यूज कर रहे हैं राइट स्टैक के लिए. Yes, yes. int stack is equal to और stack is equal to मींस स्टैक का साइज मेंशन किया. ठीक है. Yes. इजीली स्टैक में कुछ नहीं है. अभी क्या है, whenever I write the code here, int stack of size क्या है हमारे यहाँ पे ऊपर मैक्रोज में हमने साइज 10 दिया है राइट. So whenever I write the code here and whenever we compile this code, it means in my memory there is a memory allocation for the stack of size 10. Yeah. Getting it? This here memory allocated for stack as well as one integer value, one means 3 integers values, that is for value choice and top. Yeah. यहाँ पे ठीक है. कितना मेमोरी में allocate होता है? दिस इंटीजर के लिए 3 पोजीशंस प्लस ये स्टैक के लिए 10 पोजीशंस. 10 positions. Yeah. ओके. अभी टॉप इंक्रीमेंट होता है टॉप के वैल्यू दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वैल्यू. ओके. अभी यहाँ पे -1 है तो व्हेनेवर मींस मेमोरी पे जहाँ पे रेफरेंस टॉप का है वहाँ पे अभी क्या रहेगा? -1 रहेगा. व्हेन इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 देन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय -1 to 0, 0 to 1 likewise. हम कहाँ पे हैं अभी? एल्स पार्ट में. तो यहाँ पे whenever I putting the new element into my stack, okay, so initially value कितना है टॉप का? -1. So we need to increment by 1. Yes, yes. Top
प्लस प्लस करता है मैं। अभी टॉप का वैल्यू क्या किया मैंने, 1 से इंक्रीमेंट किया। यस। एरे का नाम क्या है मेरा, स्टैक। हाँ स्टैक। स्टैक। स्टैक ऑफ क्या होना चाहिए, जो भी न्यू वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं हम वो आनी चाहिए। यस और नो? यस यस हाँ, यस सर। getting it? यस सर। If you want to put the message insertion successfully, you can message here, no problem. Inserted person D वैल्यू, कौन सी वैल्यू इंसर्टेड किया, फंक्शन में दी हुई, मतलब रिसीव्ड पैरामीटर रिसीव्ड पैरामीटर, दैट इज माय वैल्यू। वैल्यू। एंड कौन से पोजीशन पे किया मैंने वैल्यू ऐड किया, टॉप के पोजीशन टॉप। पे। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखना चाहिए, टॉप पोजीशन पूछ रहे हैं, टॉप का वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। यस यस ठीक है, टॉप प्लस वन। वैल्यू एट पोजीशन टॉप +1। यस और नो? यस सर। अभी बहुत सारे टॉप अनडिक्लेयर्ड, ओके कंपाइल अभी नहीं कर सकते, बाद में करेंगे। ठीक है, कुछ का समझ में आया? यस सर। प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने नीचे पॉप कॉल किया है लेकिन वो कहीं भी हमने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, यस यस पॉप में क्या होना चाहिए, कंडीशन। अभी देखो, जैसे कि हम पुश कर रहे थे यहाँ पे, तो इन दैट केस वी आर चेकिंग वेदर माय स्टैक इज फुल और नॉट। यस यस Which condition? Stack overflow condition. स्टैक ओवर। Similar way, whenever you are removing the new element, we need to check whether my stack is empty or not. यस सर। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अंडरफ्लो कंडीशन, राइट? यस। ओके, मीन्स पॉप करते समय हमें क्या चेक करना है, अंडरफ्लो कंडीशन करना है, और पुश करते समय हमें क्या करना है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कंडीशन चेक करना है। तो अभी हम यहाँ पे पॉप का फंक्शन लिखते समय क्या क्या करना चाहिए, क्या रहेगा मेरा कंडीशन यहाँ पे, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, इट मीन्स stack is already empty. एम्प्टी। We cannot remove any element. Yes. और else पार्ट में क्या रहेगा, एल्स में पॉप कंडीशन रहेगी, डिस्प्ले डिस्प्ले कंडीशन, पॉप मतलब रिमूव करने का कंडीशन, रिमूव करने का कंडीशन। यस। तो रिमूव करने का कंडीशन मतलब क्या रहता है इन दैट केस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप -1 करते हैं, जहाँ पे हम टॉप का या इंसर्ट करते समय हमने क्या किया था, टॉप +1 किया था। यस यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, टॉप इज इक्वल टू माइनस करते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर रिमूव किया तो कैन वी प्रिंट द विच एलिमेंट वी रिमूव, नो। नो। तो यहाँ पे अगर आप कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ वो देना चाहते हो, तो currently at top element is %d, that is my टॉप में कौन सा एलिमेंट है मैं अभी यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है,
टॉप माइनस माइनस कर रहा हूँ। समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, sir. Next, you can write a function for void display डिस्प्ले में क्या करना है हमें? जितने भी हमारे स्टैक में एलिमेंट्स है वो शो करना है, मतलब शो करना है, राइट? Yes. यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे हम सीधा यू कैन डायरेक्टली यूज द एनी लूप टू शो द एलिमेंट. ओके, मीन्स सपोज आई एम यूजिंग ए फॉर int I 0 I is less than or equal to कितना होना चाहिए? Top. I plus plus. यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं? चलो मैं बैकस्लैश टी यूज करते हैं टैब Tab. देने के लिए, राइट? Yes. परसेंट डी ये कौन सा एलिमेंट मुझे शो होना चाहिए? जो भी हम प्रिंट करें अभी स्टैक में कौन से एलिमेंट्स है वो, ठीक है? सो इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू अप टू टॉप तक हमें जो भी एलिमेंट्स है वो रिमूव करने हैं, मतलब शो करने हैं. यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय परसेंट डी? दैट इज मीन बाय Decimal. स्टैक ऑफ I. I, right? Now can we check it? क्या top on declare first is in this function. Okay, क्योंकि हमने टॉप कहाँ पे डिक्लेयर किया है? मेन में किया है ना? लेवल एट एन. ओके, एन में क्या होना चाहिए यहाँ पे हम? यस, नेक्स्ट केस यहाँ पे एग्जिट कोड लिखना है ना? Yes, yes. तो सिंपली यू कैन कॉल एग्जिट फंक्शन. अगर इसके अलावा भी यूजर ने कुछ डायल किया, मतलब एंटर किया केस 1 2 3 4 नहीं दिया, सो वहां पे कौन सा केस रहता है? डिफॉल्ट केस. Default. Yeah. अगर आप ये स्विच केस वगैरह इंटरनेट पे करेंगे आपको मिलेगा डिफॉल्ट. एंटर राइट चॉइस. क्या आया मैसेज? आईडी टॉप नहीं दिया क्या मैंने? टॉप कहीं पे भी नहीं दिया हमने. इक्वल दिया ना? Can mention top outside of this one is okay, no problem. क्या कर सकते हैं इसमें?
लोकल में टॉप चाहिए ना उनको। यस, वी कैन मेक द आउटसाइड ऑफ दिस मेन फंक्शन। ग्लोबल में लिखना पड़ेगा। हम यहाँ से निकालते हैं पूरे तीनों के तीनों, और ऊपर, हाँ। उसके बाहर देते हैं, ठीक है ना। यस यस। एक्सपेक्टेड, ओके, यहाँ पे हम सेमी कोलन देना भूल गए। सपोज चॉइस 1 दिया, यस। एंटर वैल्यू टू बी इंसर्टेड, सपोज 22 दिया, इंसर्टेड 22 वैल्यू एट पोजीशन नंबर 1, फर्स्ट एलिमेंट था ना। यस यस। ओके, तो अभी यहाँ से एक ध्यान में आ रहा है कि जैसे हम एक फंक्शन, मतलब एक कौन सा भी ऑपरेशन किया तो प्रोग्राम से एग्जिट हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, जब तक यूजर एग्जिट नहीं बोलता है तब तक हमें क्या करना है। सर ये पोजीशन इंसर्टेड वैल्यू पोजीशन 1 ही रहेगा या 0 रहेगा, मतलब? हाँ, इंसर्ट एट पोजीशन नंबर 0 चाहिए, राइट। पोजीशन 1 मतलब मैंने क्या किया था यहाँ पे उसमें ना, जो भी मतलब अभी पहला एलिमेंट आ रहा है सपोज, तो हम फर्स्ट पोजीशन पे रख रहे हैं एट पोजीशन, हम ऐसे करते हैं पोजीशन 1 हुज इंडेक्स और टॉप इज, जो भी टॉप का वैल्यू है वो प्रिंट करो यहाँ पे। अभी देखो मैंने पोजीशन क्यों लिखा, सपोज हम 1 दे रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं सपोज 22, कौन से पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, लेकिन उसका टॉप का वैल्यू कितना होना चाहिए, टॉप का और करंट में जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एट पोजीशन 1 हुज इंडेक्स और टॉप इज 0, जो भी टॉप का वैल्यू 0 है, मैंने यहाँ पे सीधा देखो यहाँ पे टॉप का वैल्यू प्रिंट किया है, परसेंट, थर्ड परसेंट इज माय फॉर टॉप। यस। गेटिंग इट, मेरे लिए वो पोजीशन फर्स्ट है, लेकिन इंडेक्स और टॉप का वैल्यू क्या है वहां पे, जो भी है 0 है। यस। गेटिंग इट। यस सर। अभी हमें क्या करना है, जब तक यूजर एग्जिट नहीं कर बोलता था तब तक यूजर को ऑप्शन देना है। यस सर। हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम में ऐसे ही लिखते हैं, इस केस के बाहर जाके लिख, नाउ चेक इट, 1 दिया 22 इंसर्ट किया, यस। entered value to be inserted into stack, 33 दिया at position 1, 44 दिया, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए हमें। Yes or no? Yes sir. Every time we need to ask these 4 options. Yes yes. तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, this is my first one is whenever default के बाद यही पे आएगा, everywhere I am putting the black slash in, okay, for Yes yes, black slash. Yes, slash is I think. Yeah. यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश दिया था। Yes yes, that's right. होते हैं तो मतलब टाइपिंग मिस्टेक बहुत बार होती है, ऐसे कुछ नहीं है।
डबल स्लैश होगा सर, वहाँ प्रिंट सॉरी होगा। enter value to insert into stack again inserting का पूछ रहे हो, मतलब while कंडीशन हमने कहाँ पे चेक एंड किया देखो, while के अंदर हमने स्विच कॉल किया, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें कंडीशन while का क्या होना चाहिए था, डिफॉल्ट एक्स करता हूँ मैं, यहाँ पे पुट करता हूँ, जब तक एग्जिट नहीं हो रहा है तब तक मुझे ये भी मेनू पूछना चाहिए ना। यस 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 नो चेक इट 1 इंसर्ट किया, 22 वैल्यू इंसर्ट किया, अगेन मुझे चॉइस पूछा, 1 इंसर्ट किया, 33 इंसर्ट किया, अगेन मुझे चॉइस पूछा, 1 इंसर्ट किया, 44 इंसर्ट किया, ठीक है, 3 किया, मैंने तीनों के तीनों वैल्यू डिस्प्ले किए। Whenever I call the second menu delete element, पॉप कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड पूछ मतलब चॉइस दे रहा हूँ, ठीक है, तो when I put the second choice, कौन सा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए in that case? 44 fourth one. 44 Currently at top element is 2 okay 2, मतलब उसका इंडेक्स दिया हमने, इंडेक्स 2 है। वैल्यू देना चाहिए था हमें, ठीक है। अभी डिस्प्ले करके देखो, यस डिलीट हुआ, यस सर मतलब यहाँ पे जो टॉप एलिमेंट में डिलीट होने के बाद जहाँ पे हम 2 दिखा रहे हैं वो इंडेक्स है, वहां पे हमें क्या चाहिए था, वैल्यू चाहिए था, वैल्यू चाहिए। यहाँ पे पॉप में यहाँ पे वैल्यू चाहिए था, मतलब कौन सा वैल्यू, स्टैक ऑफ स्टैक ऑफ टॉप। गेटिंग इट। यस अभी वार्निंग का इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन एग्जिट, एग्जिट का वैल्यू पूछ रहा है अपने को, अभी एग्जिट क्यों नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, एग्जिट को डिफाइन नहीं किया है कहीं शायद, एग्जिट को डिफाइन नहीं किया कहीं पे शायद। दिस इज इनबिल्ट फंक्शन, हाँ यस सिंपली इनबिल्ट फंक्शन है एग्जिट, राइट। यस यस हेडर फाइल चेक करो, ये दोनों में से अलग होएगी, एज एग्जिट फंक्शन कॉल इट टर्मिनल प्रोसीड, कौन से लाइब्रेरी में है, stdlib stdlib, मतलब we need to add this library also, right? यस यस id return exits 1, कहाँ पे एग्जिट रिटर्न नहीं कर रहा है हमारा कोड, रन होता है, एरर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैन नॉट ओपन आउटपुट फाइल, परमिशन डिनाइड, ओके यहाँ पे ओपन है, ओपन है। अभी देखो, ठीक है।